go through by the our PPT. Introduction to the BIGAM method. Okay. In this section, a generalized version of the simplex method that will solve both maximization and minimization problems with any combination of the symbols less than greater than equal to constants will be presented. Okay. So in the bigger method, when the case is like this, either greater than equal to or equal to, if there is any condition like this, if less than equal to, so here there we will introduce a slack variable. When the condition is like greater than equal to, we will introduce a surplus variable, and when the constant is like equal to, we will introduce an artificial variable. So I told you it in the table that was in this. Uh, in this table, I told you about the this. Look at this table. When the constant type of less than or equal to, we will introduce a slack variable that will be s, and when the constant type is like greater than or equal to, we will introduce the surplus variable that is minus s plus a, and when the constant type is like equal to, we will add an artificial variable that is a. So in the bigger method, we will introduce surplus variable and artificial variable. बिगम मेथड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास कंडीशन हो ग्रेटर देन और इक्वल टू की। ठीक, ये मैंने आपको टेबल बताया था कि ये किस किस कंडीशन में हम कौन सा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। तो बिगम मेथड हम तभी इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास ये वाली कंडीशन हो, ये दो लास्ट वाली। ठीक, अब नाउ जब हमें इनका इंट्रोड्यूस करना है तो किस कंडीशन में और कैसे कैसे इंट्रोड्यूस करना है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। नाउ डेफिनेशन इनिशियल सिंपलेक्स टेबल। सिंपलेक्स टेबल में जो चीजें हमने पढ़ी थी, इन द सिंपलेक्स टेबल दैट वी हैव स्टडीड, दिस विल बी सेम बट द डिफरेंस विद द वेरिएबल्स। जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। कैसे? फॉर अ सिस्टम टेबल to be considered an initial simplex table, it must satisfy the following three conditions. इसमें से हमारे पास थ्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। वो कौन कौन सी हैं? लेट अस सी। द फर्स्ट वन इज a variable can be selected as a basic variable only if corresponds to a column in the table that has exactly one non-zero element. Remember this line carefully, read, because the meaning of this paragraph is very difficult to understand. इसको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। A variable can be selected as a basic variable only if it corresponds to a column in the table that has exactly one non-zero element and the non-zero element in the column is not in the same row as the non-zero element in the column of another basic variable। मतलब कि हम एक ऐसे बेसिक वेरिएबल को सिलेक्ट करेंगे, हम एक कोई जो हमारे पास जो टेबल बनेगी तो हम उसमें से किसी भी कॉलम में, मान लीजिए कोई भी कॉलम है, उसमें से एक ऐसा बेसिक वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे जो उस कॉलम में एग्जैक्टली एक नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। मतलब कि कोई कॉलम है जिसमें कोई वेरिएबल है, तो मान लीजिए कि हम एज ए उसको बेसिक वेरिएबल ले रहे हैं, तो उस कॉलम में एग्जैक्टली एक नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। मैं आपको आई एम टेलिंग यू बाय making a table in the Excel. Suppose that you have these variables x1, x2, s1,
S2 A1 A2, ठीक। अब मान लीजिए आपने इस तरह के आपकी ये वेरिएबल्स दिए हुए हैं। अब इनमें से you have to select any variable as a basic variable. So what would be set? What would be that? उसको क्या होना चाहिए? Suppose that here 0 1 0। Suppose that ये हमारे पास 3 सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है इस तरह से, ठीक। फिर यहाँ पर हमने लिख लिया 1 0 और 0। यहाँ पर भी और कुछ भी होंगे, ऐसे ही कुछ होगा। बट सपोज दैट हमने A1 को एज ए बेसिक वेरिएबल सेलेक्ट किया, हमने A1 को एज ए बेसिक वेरिएबल सेलेक्ट किया। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास एक नॉन बेसिक एलिमेंट है, वो नॉन जीरो एलिमेंट है, दैट इज 1। यहाँ पर जो हमारे पास ये वाला एलिमेंट है वो नॉन जीरो है, एग्जैक्टली एक नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, ठीक। अब क्या कह रहा है कि उसके अलावा अगर हम कोई अदर सेलेक्ट करते हैं, जैसे अब मान लीजिए कि हमने A2 में सेलेक्ट किया, तो जब A2 में सेलेक्ट करेंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर यहाँ पर हम 0 सेलेक्ट कर लेते और यहाँ पर 1 सेलेक्ट कर लेते, तो अगर हमारे पास ये वाले कॉलम में दोबारा हम सेलेक्ट करते तो ये सेम डिक्टो मैच कर जाते हैं, ठीक। एक ही रो में सारे के सारे ये पड़ जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पर है कि एक ही रो में इस तरह की कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि जब हम कॉलम सेलेक्ट करें तो बेसिक वेरिएबल एक ही रो या एक ही कॉलम में सारे पड़ जाएं और वो क्लैश हों, ठीक। तो अब मान लीजिए कि अगर हमने यहाँ पर इसको A2 को बेसिक वेरिएबल लिया, तो देखिए इस वाली रो में केवल यही एक नॉन जीरो एलिमेंट है और इस कॉलम में भी केवल यही एक नॉन जीरो एलिमेंट है। और अगर हम A1 को सिलेक्ट करते हैं तो देखिए इस वाले में केवल यही एक नॉन जीरो एलिमेंट है और इसमें भी, इस कॉलम में भी पूरा एक यही एक नॉन जीरो एलिमेंट है, इस तरह से। अब मान लीजिए अगर यहाँ पर ये 1 होता, ठीक। अब यहाँ पर अगर ये 1 होता तो पहली बात इस कॉलम में हमारे पास इसको तो हम बेसिक वेरिएबल सेलेक्ट नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि इसमें एग्जैक्टली 1 नॉन जीरो एलिमेंट नहीं। अब अगर हम इसको करते तो फिर हम कह रहे थे कि इस रो में अगर हमें कहीं कॉलम को सेलेक्ट करना पड़ता, आगे कहीं सेलेक्ट करना पड़ता, तो फिर इसमें कहीं भी नॉन जीरो एलिमेंट हमको नहीं मिलता, ठीक। इस वजह से हमने कहा कि जो कंडीशन हमारी दी हुई है वो किस तरह की होनी चाहिए कि a variable should be a basic variable only if corresponds to a column in the table that has exactly one non-zero element and the non-zero element in the column is not in the same row as the non-zero element in the column of another basic variable, ठीक। Now second point, the remaining variables are then selected as non-basic variables to be set equal to 0 in determining a basic solution. After selecting the basic variable, all the remaining variables will be non-basic variable. जब हमने एक बेसिक वेरिएबल को सिलेक्ट कर लिया तो जो बाकी के बचे वेरिएबल होंगे वो नॉन बेसिक वेरिएबल होंगे। एंड व्हाट वी विल डू, we will do all the non basic variable equal to 0। हम जितने भी हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल है उनको 0 सेट कर देंगे, क्यों? क्योंकि हमें एक बेसिक सॉल्यूशन निकालना है। Why we have to find the basic solution? Actually we have to find the basic solution because when we take the non basic variables are 0, so we will try to satisfy the conditions according to our subjective constants जो हमारे पास सब्जेक्टिव कांस्टेंट दिए हुए हैं। और जब हम उनको नॉन जीरो बेसिक एलिमेंट सेट कर देंगे तो हम वो नॉन जीरो जो जीरो वाली वैल्यूज है उनको रख करके देखेंगे कि जो हमारे सब्जेक्टिव कांस्टेंट्स हैं वो हमारे पास फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब मैं आपको इसमें कुछ एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम दी हुई है, ठीक। मैक्सिमाइज एंड सब्जेक्टिव कांस्टेंट। हाउ मेनी सब्जेक्टिव कांस्टेंट हियर? 1 2 3 4, 4 सब्जेक्टिव कांस्टेंट दिए हुए। अब सब में हमें अलग अलग, देखिए पहले वाले में
एक है ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशन, दूसरे बारे में लेस देन इक्वल टू की, बट हियर देखिए राइट साइड में माइनस है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर लेस देन इक्वल टू की और फिर इक्वल टू की और इसमें भी राइट साइड में माइनस है। तो इस तरह की कंडीशन जब होती है, हम पहली बात बिगम मेथड तभी लगाते हैं जब हमारे पास एट लीस्ट वन सब्जेक्टिव कांस्टेंट शुड हैव ग्रेटर देन इक्वल टू कंडीशन। नाउ among all these subjective constant, the first one is have condition is greater than equal to. So we can introduce a surplus variable in the first subjective constant, and this problem can be solved by Bingham method. इसके अलावा कुछ कंडीशंस और होती हैं जो मैं बता रहा हूं आपको। जो सेकंड कंडीशन दी हुई है, सेकंड ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, चलिए लेट अस सी -x1 -3x2 plus 4x3 less than equal to -10. Let us write it in the MS Word. Here -x1, we can increase the size of this equation. This wait, -x1 again -3x2, so -3x2 plus 4x3 plus 4x3 and subject condition says, look here, less than equal to -10. So we will write here less than equal to -10. 10. According to our linear programming algorithm, the right hand side of the inequality condition should not be minus. It should not be negative. When we have studied the standard form of LP, the to B3 dot dot up to BM, this condition is non-negativity. जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था तो हमने इस तरफ के जितने भी थे, मानने हम इनको माना था B1 B2 B3, कोएफिशिएंट जो वैल्यू थी, इट शुड नॉट बी नेगेटिव। जब ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए और यहाँ पर नेगेटिव है तो देन वी विल कन्वर्ट इट इनटू द पॉजिटिव वैल्यू। बाय हाउ? वी विल मल्टीप्लाई बाय -1 in the both side of the equation. Multiply by -1 in the both side of the equation. या inequality लिख दीजिए, EQ. When we will multiply by minus sign, what it will become? जब हम इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? देखिए दोनों साइड में, यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है, ठीक। इट विल बिकम x1 प्लस 3x2 minus 4x3 and less this remain blank and 10, इस तरह से। Now we have to remember this, that if we are multiplying by minus sign in the any subjective constant, the inequality will be reversed. Remember this, if we are multiplying by minus sign in any subjective constant, the inequality sign will be reversed. मतलब कि अगर हम किसी भी सब्जेक्टिव कांस्टेंट में माइनस साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसकी इनइक्वालिटी होती है ये आपकी, दिस विल बी रिवर्स, ये उल्टी हो जाएगी, तो इट विल बी बिकम ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। इस चीज को थोड़ा याद रखिएगा। इफ योर सब्जेक्टिव कांस्टेंट लाइक दिस, तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय माइनस
द इनइक्वलिटी विल बी रिवर्स। ठीक, तो जो ये आपका सेकंड कंडीशन है इसको हम इस तरह से बना लेंगे। एंड द थर्ड वन इज दिस इज सेम लाइक हियर वी विल इंट्रोड्यूस अ स्लैक वेरिएबल। ये आपका डिक्टो जो हमारे पास सिंपलेक्स मेथड है उसकी तरह से। एंड दिस वन इज आल्सो हैव माइनस साइन, दैट इज 3x1 minus x2 minus x3 equal to minus 15 here 3x1 minus x2 minus x3 equal to minus 15 here. So again we will multiply by minus sign, that is either minus sign or minus 1, both are the same. So by multiplying by this what it will become। अब यहां पर देखिए, यहां पर हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई तो करेंगे लेकिन इक्वल टू का उल्टा क्या होता है, कुछ भी नहीं, बराबर रहेगा, चाहे दोनों साइड से, चाहे इस तरह से करो चाहे उस तरह से करो, तो इट विल बी सेम। ठीक, तो जो यहाँ पर 3x1 है दैट इट विल बिकम माइनस का 3x1 माइनस x2 दैट विल बी प्लस x2, हियर माइनस x3 दैट विल बी प्लस x3 इक्वल टू प्लस 15। ये हमारे पास दोनों तरफ से बराबर रहेगा। ठीक, रिमेंबर इट। नेक्स्ट, हाँ, नाउ the basic solution found by setting the non-basic variables equal to 0 is feasible if you have remember। अगर आपको याद हो, in the graphical method we had solved the example by setting the x equal to 0 and y equal to 0। हमने मतलब कि 0,0 पर कुछ पॉइंट निकालते थे, अगर याद हो। उसमें हम क्या करते थे, if we have any subjective constant, so first of all we made first variable 0, after that second variable 0। so after putting the first variable 0 we get the value of second, and after equating the second variable 0 we get the value of first variable। जब हम पहले वेरिएबल को जीरो करते थे तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिलती थी, और जब हम दूसरे वेरिएबल को जीरो करते थे तो हमें पहले वेरिएबल की वैल्यू मिलती थी। उससे क्या होता था कि हमारे पास दो पॉइंट आ जाते थे जिससे हम लाइन ड्रॉ करते थे, तो उससे हम क्या निकालते थे, हमारा उससे बेसिक सॉल्यूशन निकल आता था 0 0 पर। क्यों, हमने वहां पर क्या किया था कि उस 0,0 पर जो हमारे पास सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू को हम सेटिस्फाई करवाते थे। अगर याद हो कि ये चीज मैंने पीछे बताई थी। ठीक, तो जब हम नॉन बेसिक वेरिएबल्स को जीरो कर लेते हैं तो हमारे पास एक जो सॉल्यूशन निकालते हैं, तो जो सॉल्यूशन आएगा बेसिक सॉल्यूशन दैट वुड बी आर बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन, और वी कैन से दैट इट इज आर फीजिबल सॉल्यूशन। नाउ आफ्टर रिमेम्बरिंग दीज 3 पॉइंट्स, व्हाट आर द की स्टेप्स इन द बिगेम मेथड। हमने ये 3 पॉइंट याद कर लिए, अब हमको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट, Begin method introducing slack, surplus and artificial variables to the form the modified problem। हम जो हमारे पास जो सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट्स होंगे अकॉर्डिंग टू द इनइक्वलिटी कंडीशन वी हैव टू इंट्रोड्यूस आइदर स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल। उसके लिए मैंने आपको ये टेबल बताई थी कि जो जैसी कंडीशन होगी वैसा ही हम वेरिएबल ऐड करेंगे। दैट इज रिटन हियर, if any problem constants have negative constants on the right side, multiply both side by -1 to obtain a constants with a non-negativity constant। Remember to reverse the direction of the inequality if the constant is an inequality। ये फर्स्ट पॉइंट डिक्टो सेम लाइक दिस जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक, कि अगर राइट हैंड साइड में किसी भी कॉन्स्टेंट्स के नेगेटिव है तो हम उसको -1 से मल्टीप्लाई करके उसको चेंज कर लेंगे और जो इनइक्वलिटी होगी वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक, दैट इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इंट्रोड्यूस ए स्लैक वेरिएबल फॉर ईच कॉन्स्टेंट्स ऑफ द फॉर्म।
जितने भी हमारे पास सब्जेक्टिव कांस्टेंट कंडीशन है उसमें अगर हमारे पास कहीं भी लेस देन इक्वल टू का सिंबल है, जस्ट लाइक दिस, हमारे पास सब्जेक्टिव कांस्टेंट अगर लेस देन इक्वल टू का है, पहली तीसरी कंडीशन देखिए, तीसरा इक्वेशन, ठीक, 2x1 प्लस 4x2 प्लस 5x3, अगर इस तरह का कहीं भी है तो वहां पर हम सीधा स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक, इस वाले में। सेकंड, इफ introduce a surplus variable and an artificial variable in each greater than equal to constant। अब अगर आपके पास इस तरह का सिंबल है ग्रेटर देन इक्वल टू इनइक्वलिटी में, तो वी विल इंट्रोड्यूस ए सरप्लस वेरिएबल। किस तरह का सिंबल होगा, देखिए जो इसमें पहला वाला है, इन द फर्स्ट कांस्टेंट हियर x1 माइनस 2x2 प्लस x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो इस कंडीशन में हम लोग सरप्लस वेरिएबल ऐड करेंगे, और सरप्लस वेरिएबल क्या होगा वो यहां से देखिए, दैट इज माइनस एस प्लस ए। एंड इफ द कंडीशन इज इक्वल टू, तो इक्वल टू के केस में हम क्या करेंगे, इन द केस ऑफ इक्वल टू इंट्रोड्यूस एन आर्टिफिशियल वेरिएबल इन ईच इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारे पास इक्वल टू की कंडीशन होती थी तो उसमें हम एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ए ऐड करते थे। तो हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए जो लास्ट वाला सब्जेक्टिव कांस्टेंट है दैट इज फोर्थ कांस्टेंट, तो उसमें इक्वल टू का कंडीशन है तो हम उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करेंगे। नाउ ये तो हो गया हमें वेरिएबल ऐड करने वाला। अब जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें हम क्या करेंगे, ठीक, फॉर ईच आर्टिफिशियल वेरिएबल ए add minus ma to the objective function, use the same constant m for all artificial variable। अगर आपको याद हो तो मैं एक पीछे दिखाता हूं एग्जाम्पल 10। जब हम लोग वहां पर सिंप्लेक्स में ऐड करते थे तो क्या करते थे कि देखिए हमारे पास यहाँ दो सब्जेक्टिव कांस्टेंट थे लेस देन इक्वल टू के, तो हमने उसमें दो स्लैक वेरिएबल जोड़ दिए थे s1 और s2, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमने उसको जीरो कॉफिशिएंट के साथ ऐड किया था। एट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन वुड बी 7x1 प्लस 5x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2। बट इन द केस ऑफ बिगम मेथड, जब हम बिगम मेथड को सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, कह रहे हैं फॉर ईच आर्टिफिशियल वेरिएबल, मतलब कि जितने भी आर्टिफिशियल वेरिएबल होंगे आइदर 1 2 और 3, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आर नंबर ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो व्हाट वी विल डू, हम लोग उतने ही आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को m क्वांटिटी के साथ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऐड करेंगे, ठीक है ना। हम उतने ही आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऐड करेंगे। इसमें लिखा है माइनस एम ए। अब यहां पर माइनस एम ए लिखा है, यहां पर एक चीज और लिखी हुई थी, इन द केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन, यहां पर लिख देते हैं अगर मैक्सिमाइजेशन का केस है तो हम माइनस एम ए इंट्रोड्यूस करेंगे, मैक्सिमाइजेशन, ठीक। और अगर यही मिनिमाइजेशन का केस होता, जैसे आपका यहां पर दिया हुआ मैक्सिमाइज पी, ठीक, तो यहां पर हमने माइनस एम, और अगर ये मिनिमाइज होता तो यहां पर हम करते प्लस एम ए, प्लस एम ए ऐड करते फिर, ठीक। तो अब इसको हम देखते हैं जरा, जो हमने इसमें किया था, जितनी चीजें हमने बताई हैं, अब उसमें देखिए ये एग्जाम्पल था पहला, ये एक इंट्रोडक्शन है, इसका सॉल्यूशन पूरा हम बकायदा बाद में इसमें एक पेपर में सॉल्व करके फिर इसको बताएंगे। फर्स्ट, नोटिस दैट द सेकंड कांस्टेंट हैज ए नेगेटिव नंबर, ठीक। सेकंड कांस्टेंट व्हाट वाज दैट, दिस,
माइनस एक्स वन माइनस 3x2 प्लस 4x3 लेस देन इक्वल टू माइनस का 10। ठीक, so notice that the second constant has a negative number on the right hand side. To make that number positive, multiply both sides by -1 and reverse the direction of inequality. देखिए, जो सेकंड कांस्टेंट था उसमें हमने माइनस का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये बन गया। ठीक, ये चीज मैंने अभी बताई आपको यहां पर ये सॉल्व करके। फर्स्ट, सेकंड कंडीशन देखते हैं। The fourth constant has a negative number on the right hand side, so multiply both sides of this equation by -1 to change the sign of 5 to 15 to -15 to +15। ठीक, अब यहां पर देखिए मैंने क्या बताया था कि यहां पर इसमें -15 था। ये देखिए ये -15 है, अब है इसमें माइनस का मल्टीप्लाई, तो ये जहां जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा। तो लेट अस सी, ये प्लस का 3x1 था, माइनस का 3x1, माइनस का x2 प्लस का x2, माइनस का x3 प्लस x3 इक्वल टू -15, दैट इज इक्वल टू +15। अब हमने ये तो कन्वर्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू साइन है तो इक्वल टू का उल्टा सीधा एक ही होता है, तो इसलिए यहाँ पर इक्वल टू साइन है। अगर यहाँ पर लेस देन इक्वल टू होता तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता, और ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो लेस देन इक्वल टू हो जाता। ठीक, नेक्स्ट, introduce a surplus variable and an artificial variable for the constant x1 minus 2x2 plus x3। पहले वाले में हमें एक सरप्लस वेरिएबल ऐड करना है। पहला वाला हमारा कौन सा था, देखिए दिस। ठीक, x1 माइनस 2x2 प्लस x3, हमने इसमें एक सरप्लस वेरिएबल ऐड करना है अकॉर्डिंग टू आवर टेबल, दैट इज दिस minus s plus a, so we will introduce here minus s1 plus a1। ठीक, ये हमारा हो गया फर्स्ट सब्जेक्टिव कांस्टेंट, ये हमने इसको बदल दिया। दूसरे में हमारे पास डू द सेम प्रोसीजर फॉर द अदर कांस्टेंट। दूसरे में हमारे पास ये सब्जेक्टिव कांस्टेंट दूसरा था, लेकिन जब हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया था तब ये कुछ दूसरा हो गया था। देखिए यहाँ पर इट वॉज लेस देन कंडीशन, दैट इज माइनस x1 माइनस 3x2 प्लस 4x3 लेस देन इक्वल टू -10, बट आफ्टर मल्टीप्लाइंग द -1 द कांस्टेंट हैज बिकम दिस। ठीक, तो अब ये चूंकि ग्रेटर देन इक्वल टू कंडीशन का हो गया है, so here we will introduce a surplus variable that is minus s2 plus a2। याद रखिएगा इसमें माइनस s2 प्लस a2 इक्वल टू 10। तो हमने यहां पर भी एक सरप्लस वेरिएबल ऐड कर दिया। आगे, इंट्रोड्यूस सरप्लस वेरिएबल फॉर लेस देन और इक्वल टू कांस्टेंट। इस यहां पर जो तीसरा था, तीसरा कौन सा था, 2x1 4x2 प्लस 5x3 लेस देन इक्वल टू 20। ठीक, तो ये है यहां पर। अब यहां पर हमें क्या करना है, स्लैक वेरिएबल ऐड करना है, क्योंकि यहां पर लेस देन इक्वल टू की कंडीशन है। थर्ड में देखिएगा, थर्ड में आपको कहीं कुछ नहीं किया और कंडीशन है लेस देन इक्वल टू, तो हम यहां पर स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। दैट इज कितने s1 s2 इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। ठीक, s1 हमने किया था इसमें, और फिर इसमें s2, अब इसमें करेंगे s3। ये हमारे पास आ गया स्लैक वेरिएबल, जस्ट सेम एज द सिंपलेक्स मेथड प्रोसेस। नाउ फोर्थ कंडीशन क्या थी, इक्वल टू की। तो इक्वल टू में अकॉर्डिंग टू आवर टेबल वी हैव टू इंट्रोड्यूस ओनली एन आर्टिफिशियल वेरिएबल दैट इज a प्लस। तो हम यहाँ पर a प्लस कर दिए हैं, तो हम कितने, 2a ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, तो हमने a1 a2 किया, तो यहाँ पर हमने कर दिया a3। इंट्रोड्यूस द थर्ड आर्टिफिशियल वेरिएबल फॉर द इक्वेशन कांस्टेंट दैट इज -3x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस a3 इक्वल टू 15। नाउ अब देखिए, फॉर ईच ऑफ द 3 आर्टिफिशियल वेरिएबल्स
we will add minus ma to the objective function. अब यहां पर क्या है कि हमारे पास कितने आर्टिफिशियल वेरिएबल है? 3, a1 a2 एंड a3. ठीक, a1 a2 a3 लेने के बाद हम क्या करेंगे कि उसको माइनस m, याद रखिए माइनस m इसलिए बिकॉज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज केस ऑफ मैक्सिमाइज. ठीक, हमारे पास मैक्सिमाइजेशन का केस है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, इसलिए हम यहां पर माइनस m ले रहे हैं. इफ आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन would be like minimization, if our objective function would be minimization, then we will introduce plus m. ठीक, हम इसको प्लस एम के साथ है. अगर हमारे पास ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम होती तो यहाँ पर प्लस m1 प्लस ma2 प्लस ma3 इस तरह से करते हैं. बट हियर द केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन, सो वी हैव इंट्रोड्यूस माइनस ma1 माइनस ma2 एंड माइनस ma3. ठीक, हमने ये वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिए. नाउ अब बाकी का हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो बाद में हम करेंगे कि हमें इसको कैसे क्या करना है. हम यहाँ पर जितने भी हमारे पास सब्जेक्टिव कांस्टेंट्स हैं, ठीक, उतने ही वेरिएबल्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे हमारी टेबल में. अब इसको जो सॉल्व करने का है उसका मेथड क्या है और हम इसमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम इसका देखते हैं. की स्टेप्स फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम यूजिंग द बिगेम मेथड. नाउ that we have learned the procedure for finding the modified problem for a linear programming problem, we will turn our attention to the procedure for actually solving such problems. The procedure is called the BigM method. Actually, why we use BigM method? सिंप्लेक्स मेथड से हम जो है ट्रेडिशनल जितने भी न्यूमेरिकल से लीनियर प्रोग्रामिंग के वो सॉल्व करते हैं. एंड द बिगम मेथड इज एक्सटेंशन ऑफ सिंप्लेक्स मेथड. It provides the power of solution of for LPP problem. Actually जो हमारे पास बिगम मेथड है ये हमें सिंप्लेक्स मेथड का एक्सटेंड फॉर्म है, या हम कह सकते हैं कि दिस इज अ वेरिएंट ऑफ सिंप्लेक्स मेथड. जैसे कोविड के तमाम ढेर सारे वेरिएंट चल रहे हैं ना, ऐसे ही ये सिंप्लेक्स मेथड का एक वेरिएंट है. ठीक, और ये हमें जो LPP प्रॉब्लम है उनकी सॉल्यूशन करने की, जो उसको सॉल्व करने की उसको पावर प्रोवाइड करता है. ये जो बिगर मेथड है हमें इसमें हम और बेटर रिजल्ट निकाल सकते हैं. इसका सॉल्यूशन और एग्जैक्टली और अच्छे मतलब कि मोर ऑप्टिमल होते हैं रेदर देन द सिंप्लेक्स मेथड. नाउ व्हाई वी कॉल्ड इट बिगर मेथड. हम इसको बिगर मेथड क्यों कहते हैं? एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द केस ऑफ कंडीशन, जो हम ये m इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, when we are introducing m quantity with artificial variable, so this m is either very small or very large. जो ये m है या तो बहुत ज्यादा स्मॉल होगा या तो बहुत ज्यादा लार्ज होगा. कैसे? हाँ, वन थिंग मोर, द m either would be more large or very large or very small, but it could not be नेगेटिव. ये इसको नेगेटिव में नहीं जाएगी, जितने भी हमारे पास वेरिएबल हैं नेगेटिव में नहीं जाएगा. ठीक है ना. अब बात करते हैं कि इसको बिगम, चूंकि हम इसको m क्वांटिटी के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं और क्वांटिटी आइदर वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल, मतलब ये बिग होता है, बिग स्मॉल या बिग लार्ज. ठीक, तो हम इसी वजह से इसको बिगम मेथड बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट, BigM method solving problem. Form the preliminary simplex table for the modified problem. सबसे पहले हमको एक प्रिलिमिनरी मतलब कि पहली एक टेबल बनानी है सिंप्लेक्स टेबल की तरह, जिसमें हम की क्या लिखते थे? CJ बेसिक वेरिएबल, कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल और वैल्यू ऑफ XB, फिर ऑल द वेरिएबल्स x1 x2 x3 s1 s2 a1 a2, इस तरह के जितने भी वेरिएबल होते थे, और मिनिमम रेशियो. ठीक, फिर लास्ट में ZJ और CJ माइनस ZJ.
इस तरह की हम टेबल उसमें बना लेते हैं। नाउ use row operations to eliminate the m's in the bottom row of the preliminary simplex table in the columns called artificial variables. The resulting table is the initial simplex table. अब हमें क्या करना है कि जो हमने m इंट्रोड्यूस किया है हम उसको एलिमिनेट करेंगे। ठीक, उसको सॉल्व करने की, जैसे हम वहां पर क्या एंटरिंग वेरिएबल और एग्जिट वेरिएबल लेते थे कि जो हमने सिलेक्ट वेरिएबल लिए हैं तो उनमें से कौन सा हमारा एग्जिट वेरिएबल होगा और उसकी जगह कौन सा एंटरिंग वेरिएबल आएगा हमारे पास। तो ऐसे ही हम यहाँ पर जो m क्वांटिटी है उसको हटाया करके उसकी कुछ वैल्यू लाएंगे। और जो हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल है, all the artificial variables are used in the Bingham method for only calculation purpose. After achieving our purpose, we will eliminate all these artificial variables. मतलब कि ये हम इनको डिलीट कर देंगे। जो हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं वो हमने अपने कैलकुलेशन पर्पज के लिए रखा है। ठीक, आफ्टर अचीविंग आवर पर्पज वी विल एलिमिनेट इट, हम इसको हटा देंगे। Now solve the modified problem by applying the simplex method to the initial simplex table found in the second step. अब जो हमारे पास टेबल बन के सिंप्लेक्स की आई है उसको सिमिलर एग्जैक्ट वही सिंप्लेक्स मेथड की तरह ही सॉल्व करना है। कैसे? मतलब कि हम सीजे माइनस जेड निकालेंगे, उसमें से जो सबसे मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी दैट करस्पॉन्डिंग टू दैट वैल्यू, वो कॉलम जो होगा दैट कॉलम विल बी आर pivotal column or key column, and after that we will divide all the value of xb by corresponding key column value, so we will get the minimum ratio. तो जो minimum ratio होगा corresponding to that minimum ratio row is called r pivotal row or key row. फिर उसमें से जो हमारे पास एलिमेंट आएगा वो हमारा कहलाएगा की एलिमेंट। फिर आगे हम सारी की सारी प्रोसेस उसी तरह से करते रहेंगे जैसे कि हम करते रहे। नाउ किस किस कंडीशन में इसके कौन कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं? देखिए, रिलेट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द मॉडिफाइड प्रॉब्लम टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम। डिक्टो सिंप्लेक्स मेथड की तरह सॉल्व करने के बाद क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं और उसका क्या क्या मीनिंग होगा। रिलेट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द मॉडिफाइड प्रॉब्लम टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम। फर्स्ट, if the modified problem has no optimal solution, जो modified solution है मतलब कि जो सिंप्लेक्स टेबल से हमारे पास जो solution निकलता है ये सब पूरा इंट्रोड्यूस करने के बाद अगर हमारे पास कोई भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है तो हम वी कैन से दैट आवर ओरिजिनल प्रॉब्लम हैज आल्सो नो एनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अगर जब हम सिंप्लेक्स टेबल फ्रेम करके उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं और उससे हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो फिर ये मान के चलिए कि जो हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम थी तो उसका भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा। दूसरा, if all artificial variables are zero in the optimal solution to the modified problem, if all artificial variables are zero, जब हम सॉल्व करेंगे टेबल को और हमारे सभी आर्टिफिशियल वेरिएबल जीरो होते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन में जो मॉडिफाइड प्रॉब्लम है, तो डिलीट द आर्टिफिशियल वेरिएबल्स टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम। तो हमारे पास जो ओरिजिनल प्रॉब्लम थी उसमें से सारे के सारे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को हम एलिमिनेट कर देंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए। ठीक, अगर हमारे पास सभी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की वैल्यू ऑप्टिमल सॉल्यूशन में जो मॉडिफाइड आता है उसमें जीरो हो जाती है तो हमारे पास जो ओरिजिनल प्रॉब्लम थी वहां से भी हम उनको एलिमिनेट कर देंगे। नाउ if any artificial variables are non-zero in the optimal solution, अब मान लीजिए कि हमने पूरा सॉल्यूशन निकाल लिया और उसमें अगर कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल जीरो नहीं आता है, मान लीजिए कि हमारे पास जो A1 A2 A3 हमने ये इंट्रोड्यूस किए हैं और पूरा सॉल्व करने के बाद भी अगर ये जीरो नहीं आते हैं
तो इट मीन्स द ओरिजिनल प्रॉब्लम हैज नो ऑप्टिमल सोल्यूशन। मेन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास इसको हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना होता है। जब मैं इसका पूरा शुरू में बता रहा था तो मैंने उसको बताया था कि हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को हमें एलिमिनेट करना। तो अगर ये लास्ट तक हमारे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स एलिमिनेट नहीं होते हैं तो इसका मतलब कि दैट प्रॉब्लम हैज नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ये पॉइंट हमें कुछ याद रखने हैं। तो दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन सॉल्यूशन ऑफ सिंप्लेक्स मेथड। ठीक, नाउ जो हम ये एम इंट्रोड्यूस करते हैं ये कहलाती है हमारी एज ए पेनाल्टी। ये मैक्सिमाइजेशन के केस में मिनिमम और मिनिमाइजेशन के केस में मैक्सिमम होती है। ठीक, जैसे अगर हमें कोई प्रॉफिट वाला मैक्सिमाइज हमें करना है प्रॉफिट, तो हम ये जो पेनाल्टी लगाते हैं तो उसमें क्या करेंगे, मिनिमम पेनाल्टी लगाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि हम एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको मैक्सिमाइज कर रहे हैं और उसमें हमें पेनाल्टी लगानी है, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो पेनाल्टी हो वो मिनिमम से मिनिमम हो। तो जो ये एम हम इंट्रोड्यूस करेंगे वो क्या होगा कि मैक्सिमाइजेशन के केस में मिनिमम होगा। एंड अगर यही मिनिमाइजेशन का केस हो तो उसमें ये पेनाल्टी फिर हमारे पास मैक्सिमम होगी। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एम वैल्यू विद आर्टिफिशियल एसोसिएटेड विद आर्टिफिशियल वेरिएबल। मतलब कि जो हमारे पास एम है दिस इज एसोसिएटेड विद आर आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो ये एक इंट्रोडक्शन था हमारा बिगम मेथड का। अब इसका एग्जाम्पल विद न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसमें से देख लेते हैं अगर कुछ और थोड़ा बहुत बचा हो तो आई एम ट्राइंग टू डिस्क्राइब टू यू, और अगर नहीं होगा तो फिर आई डोंट थिंक सो कि इसमें अब कुछ और बचा है। ये इसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। हाँ, तो आई डोंट थिंक कि अब इसमें कुछ बचा है। सारा ये जो है बिगम मेथड का इंट्रोडक्शन आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक, तो अब इसमें जब ये हमारे पास इसका एक एग्जांपल और बता देंगे तो ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब इसमें से अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। अटेंडेंस बता दीजिए। ये चैट सेक्शन में सारे लोग अपना नाम लिख दें जरा अटेंडेंस के लिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसमें अपना सब लोग नाम लिख दीजिए जिससे मैं अटेंडेंस लगा पाऊंगा। सुशील पाल, रिया भारती, स्वाति दुबे, श्रेया सुशांत, शिवांगी शुक्ला, सिद्धार्थ त्रिवेदी, युवराज, और भी तो बच्चे थे। सृष्टि, तरुण, यसी। काफी लोगों ने नाम नहीं लिखा। युवराज ने नाम नहीं लिखा, सृष्टि का लिखा है, सृष्टि ने नहीं लिखा। चलिए एक बार थोड़ा वो कर लेते हैं अटेंडेंस। शशांक तिवारी नहीं है, छाया बानो नहीं, शिवम शर्मा नहीं, शिवम अडाला नहीं, शिवांगी शुक्ला। नहीं, श्रेया ओम नहीं, श्रेया सचान, श्रेयस विमल नहीं, श्रुति ढाकरे नहीं, शुभम यादव नहीं, सुभी यादव थी नहीं।
सिद्धांत श्रीवास्तव, सिद्धार्थ त्रिवेदी ये था ना? यस सर था। चलिए सिद्धार्थ त्रिवेदी। फिर इसके बाद सिमरन सानी नहीं, सूरन वर्मा नहीं। सर सिद्धार्थ त्रिवेदी की अटेंडेंस नहीं लगी है। सिद्धार्थ त्रिवेदी लगा तो दिए। ओह सॉरी, ऊपर लगा। ये हो गया। एक फिर स्नेहा यादव थी ना? स्नेहा यादव। सृष्टि पाल है, स्तुति मिश्रा है, सुकीर्ति नहीं, सुमित कुमार था? सुमित कोई तो था, सुमित कुमार भूल तो सुमित कुमार सिंह। कौन सा सुमित था? सुमित कुमार है कि चला गया? सर नहीं है। दोनों नहीं। सुप्रिया, शील पाल, स्वाति दुबे है, अनुष्का वर्मा है, अरुण कटियार भी है था। उज्जवल, उत्कर्ष नहीं, उत्कर्ष मिश्रा, उत्कर्ष सिंह था ना? वैभव कुमार मिश्रा ये था शायद, आया तो था वैभव। वंशिका सिंह चौहान है, वर्षित निगम, विजय विजय पांडे, विजय सिंह, वासी सिद्दीकी, यश सरोकिया, यशी द्विवेदी। यशी थी ना? यशी मौर्य है सर। यशी मौर्य है। यशी मौर्य। युवराज सिंह था, ग्यारहवती ने, अमित सिंह, संस्कार गुप्ता, स्वतंत्र विजय, रिया भारती। रिया भारती थी? है रिया, सर। हाँ रिया तो थी। कटियार, दिव्यांश तो यशी मौर्य ये। मोहम्मद आदिल, आयुष चंदेल, आशुतोष सिंह, रेयान श्रीवास्तव, अक्षत मिश्रा, हसन गायब, योगेन, आदत, अनमोल। बस ठीक, इतने ही लोग थे। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं पर करते हैं, और बाकी के लोगों को अगर कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे विद सॉल्यूशन। ओके, तो थैंक यू क्लास फॉर योर कोऑपरेशन।